Hello students, welcome back to maths class. In this video, we will begin our exercise 3.3. Its first question is, given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. In the question they given us the parallelogram, their vertex name is A, B, C and D. When we see the figure very properly, we can see in this figure we have two diagonals, that is A, C and B and D. Where the diagonals are intersecting each other, their point name is O. So we have to complete the given four statement with the use of definition or property. So now we will go. AD. First is AD. So where is AD? AD. This is AD. Now which thing is equal to AD? We know the opposite sides of parallelogram are equal. So AD is a side and its opposite side is BC. So its answer is BC. And the reason is opposite side of parallelogram are equal. So here is opposite side of parallelogram are equal. Second is angle DCB. So where is D? This is DCB. It means they are talking about this angle. So which thing is just equal to this angle DCB? It is just equal to opposite. It means angle C is equal to angle A. So how we can write it? We can write it from the DAB or we can also write it from BAD. Here is angle DCB is equal to angle DAB. And the reason is opposite angles of a parallelogram are equal. Here is opposite angles of parallelogram are equal. Third is OC. So where is OC? This is OC. OC is a part of diagonal, half part of diagonal. So where is another half part of a diagonal? OC. So another part of a diagonal is AO. So AO or OA. We can write it from anywhere. So OC is equal to OA. And which property is there? Same property, diagonals of parallelogram bisect each other. This is diagonals of parallelogram bisect each other. This property we would use. Fourth is measure. When we see M just in front of angle, its meaning is measure. Measure angle DAB plus measure angle CDA is equal to how much? So where is angle DAB? देख लेते हैं. एंगल DAB. So ये रहा DAB. It means this angle. They are talking about this angle. Okay. Angle DAB. And second is CDA. So where is C? This is CDA. So this is the midpoint of angle. So here. So they are telling us when we at this angle, angle A. In short, I am telling you angle A and angle B. What is the sum of angle A and angle D? So you can see angle A and angle D are present at the end point of a line segment. And we know whenever we have adjacent angles, their sums are 180 degree. Their sum are 180 degree. So they are present at the end point of a line segment AD. So their sum will become as a 180 degree. And which property we use? We use adjacent angle of a parallelogram as supplementary. Okay. So here it is. Adjacent angles of parallelogram have sum of 180 degree, that is supplementary pairs of angle. So here is the completed question number 1 of exercise 3.3. Now question number 2 of exercise 3.3. Consider the following parallelograms. Find the values of the unknown x, y and z. In the question number 2, they given us some figures. So they want to know in each figure how much the value of x, y and z. So first figure is parallelogram name as A, B, C, D. And they want to know the value of x, y and z. When you just see the figures very properly, only one value, that is in the solution, only one value that is given. What is angle B? Angle B value is 100 degree, that is already given. Okay. Now from the angle B we can take any value. Can we take any value from the B, angle B? Yes, we can take.
because we know opposite angles of parallelogram are equal. So we can say angle B is equal to angle D. Angle B is equal to angle D. Which property? Opposite angles of parallelogram are equal. So from this property we can say angle B is equal to angle D. Now angle B value is 100 degree, and what is the value of angle D? Angle D value is y. Okay, so this is the value of y. Here it is for first one. ये हमने सबसे पहले के लिए करा, ठीक है. नाउ वन मोर थिंग इज देयर. अगर हम सेकंड के लिए बात करते हैं, सेकंड केस बात करते हैं, सेकंड केस में क्या होगा? हम देख सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल सी सेम केस है. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. सेम केस, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हम ये बोल सकते हैं. नाउ एंगल ए की वैल्यू क्या है? एंगल ए की वैल्यू है हमारे पास z, और एंगल सी की वैल्यू क्या है? x. अच्छा, अब हमको इसमें से ना तो z की वैल्यू पता है ना तो x की वैल्यू पता है. पता है क्या? नहीं पता. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ z एंड वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x. बट अगर अगर x की या z में से दोनों में से किसी एक की निकाल लेंगे तो वही वैल्यू किसकी निकलेगी? दोनों की निकलेगी. तो चलो करते हैं. अब आप देखोगे, किसी को भी देख लो, या तो b वाले पॉइंट को देख लो या d वाले पॉइंट को देख लो. तो हम b वाले पॉइंट को देखते हैं, ठीक है. b वाले पॉइंट से b और c देखो क्या है? पेयरिंग है. ये पेयरिंग बन रहा है. b c के जो एंड पॉइंट्स पर है 100 डिग्री और x है. सो वी नो द एडजेसेंट एंगल्स, एंगल b एंड एंगल c आर एडजेसेंट एंगल. So we know that the adjacent angles making the pair of supplementary. So we can put here angle B plus angle C is equal to 180 degree. So angle B value is 100, angle C value is x. So when this 100 will go opposite side, so it will go in the subtraction. So x value will come as a 80 degree. अगर x की वैल्यू 80 डिग्री है, so ऑटोमेटिकली z की वैल्यू भी क्या निकल जाएगी? 80 डिग्री. सो z की वैल्यू भी क्या निकली? 80 डिग्री. सो दिस इज द सॉल्यूशन. x वैल्यू हमने क्या निकाली? 80. y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 100 डिग्री. एंड z की वैल्यू हमने क्या निकाली है? अगेन 80 डिग्री. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट फिगर. सेकेंड पार्ट. Second part, we don't have the values of vertex, so how can we solve? For making it easy, we can put the vertex name, or we can take it without putting the vertex name. How? देखते हैं. देखो, अगर वर्टेक्स नेम पुट करके रखोगे तो आपको समझ में नहीं आए, बिना पुट करके करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सी एडजेसेंट साइड की बात कर रहे हैं. तो हम रख लेते हैं, क्योंकि रखने में क्या जा रहा है, ठीक है. तो मैं यहाँ पर हमेशा याद रखना, हमको एक ही या तो एंटी क्लॉक चलना है या तो क्लॉकवाइज चलना है. सो ए B C D, it is the vertex name A B C D. So now we can say A internal angle is x, B exterior angle is z, C interior angle is y, D interior angle is 50. So now it is easy. X and y are opposite angles, so they are equal. 50 and there we don't have value, so अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो उसकी वैल्यू भी क्या आती? 50. अपोजिट एंगल से. बट अब हम इनको अच्छे से सॉल्व करना है, तो चलो करते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम y की वैल्यू को फोकस करते हैं. अच्छा, y के पास में यहाँ पर कोई वैल्यू है? नहीं है. तो अभी यहाँ देखते हैं साइड से. y के पास यहाँ पर एक 50 वैल्यू है. क्या ये एडजेसेंट है? एडजेसेंट है, अपोजिट है? हाँ, ये एडजेसेंट है. क्या है? एडजेसेंट है. सो एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. हम प्रॉपर्टी लिख लेंगे बाद में. एंगल D की वैल्यू क्या है? 50 डिग्री है. एंगल C की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये 50 अपोजिट साइड जाएगा, बट कैसे जाएगा? सब्ट्रैक्शन में जाएगा. तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 130 डिग्री. अच्छा, अब y की वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री निकली. तो क्या y से हम किसी और की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, हम y से x की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो एंगल y is equal to angle x. Which property? Opposite angles of parallelogram are equal. y की वैल्यू हमने क्या निकाली? 130 निकाली. एंगल x की वैल्यू x. सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास?
130 degree. It is, here it is. So x value is 130 degree, y value is 130 degree. Lastly we have to take the value of z. z की वैल्यू हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ तो या तो हम इंटीरियर पार्ट में जो अननोन है उसको निकाल लें और फिर उसमें से 180 में से हम अननोन को माइनस कर दें, तो वो भी कर सकते हैं. या तो एक तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपने अभी पढ़ा होगा लाइन्स एंड एंगल्स इसके पहले वाले वीडियो में, तो आपको याद होगा कि अगर मैं तो हमने एक पूरे पेयर को उठाकर एक के ऊपर एक रखा था. तो आप देख सकते हो यहाँ पर AD और BC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल. तो पैरेलल लाइन को वैसे ही AD को उठाकर मैं ऐसी की ऐसी BC पर रखूँगी तो x किसके ऊपर जाके बैठेगा? x हमारे जाके बैठेगा z के ऊपर. सो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमको ये याद रखना है. बैठेगा तो सही, बट किस प्रॉपर्टी से बैठेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से. किस प्रॉपर्टी से बैठेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से बैठेगा. करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. सो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 130 है, तो z की वैल्यू भी क्या आ गई? 130 डिग्री आ गई. अब इसको हम अच्छे से लिखते हैं. x की वैल्यू भी 130 निकली, y की वैल्यू भी 130 डिग्री निकली और z की वैल्यू भी क्या निकली? 130 डिग्री निकली. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ सेकेंड वन. Third of question number 2. Again you can see in the figure we don't have the vertex name, so we can solve it without the vertex name and we can also solve it with the vertex name. But when we put the vertex name it is easy to understand which point we are talking. So we have to always remember we have to put the vertex name from the clockwise or anti-clockwise, but same direction without leaving any single point. So now here I am putting any name we can put. I am in this figure putting P, Q, R, S. Okay, we have to take the value of x, y and z. When we see the figure very properly, on that time one value we can take easily, that is the midpoint. In the midpoint we are putting its name is O, x, and when we see here the square symbol shows us this is the symbol of 90 degree. So we can say angle x is equal to 90 degree. But which property? Always remember, if we are telling any angle to equal to anything, so we have to say that here is which property we are using. So x is equal to 90 degree. Here we are using vertical opposite angle property. अब x की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री. अच्छा, अब यहाँ पर हम 90 डिग्री ले चुके हैं, यहाँ हमारे पास 30 डिग्री है और यहाँ पर हमारे पास एक y है. तो अगर हम इतने से फिगर को देखें, ऊपर वाले फिगर को, तो हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है एंड वी नो द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज मेकिंग द सम ऑफ 180 डिग्री. तो हम एंगल x, एंगल y और एंगल 30 को मिलाकर किसके इक्वल रख देंगे? 180 डिग्री के इक्वल रख देंगे. तो एक न्यू केस बोल रहे हैं, एंगल इन ट्रायंगल. ट्रायंगल का नाम क्या है? ROQ. इन ट्रायंगल ROQ एंगल R प्लस एंगल O प्लस एंगल Q मेकिंग द सम ऑफ 180 डिग्री. ओके, एंगल R की वैल्यू क्या है? Y. एंगल O की वैल्यू क्या है? X. एंगल Q की वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ in the x, y and x we know the value of x, so we will put the value of x as a 90 degree. So 90 degree plus 30 is equal to 180 degree. y and y will remain same. 90 and 30 will making the sum of 120 degree is equal to 180 degree. अब ये 180 डिग्री उस तरफ जाएगा तो कैसे जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. y की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री. ओके, नाउ we taken the value of x and we taken the value of y. Now only one is remaining, angle z. अब एंगल z के लिए हम क्या करते हैं? एंगल z देखते हैं वो कौन सी लाइन पर है. एंगल z है लाइन PR पर. PR पर, अच्छा PR पर कोई लाइन पर हमको कोई एंगल पता है? हमको इमीड एंगल पता है x. और देखते हैं कॉर्नर पर, हाँ हमको y भी पता है. तो P और R के जो एंड पॉइंट्स हैं उसके अपोजिट एंगल क्या है? z एंड y. तो अभी हमने एक लाइन्स एंड एंगल्स में इसके पहले वीडियो में पढ़ा कि
इंटीरियर में इधर का उधर भी होता है, इट मीन्स इस तरफ का एंगल उस तरफ के एंगल के इक्वल होता है। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर। हमने इंटीरियर में बात कर रही है इसलिए यहाँ पर हमको इंटीरियर लिखना पड़ेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि एंगल z और एंगल y एक दूसरे के क्या है? इक्वल। एंगल y की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, और ये निकल गई हमारे पास z की वैल्यू। अब अगर हम अच्छे से बोलना चाहें तो x की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, y की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, एंड z की वैल्यू क्या निकली? 60 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड वन। Fourth of question number 2. In this figure we again have quadrilateral and we don't have the vertex name, so we have to put the vertex name. Here I am putting the vertex name A, B, C, D. Now when we see the figure, which value we can take easily? Firstly we will see which value is given. Here angle C value 80 degree is given. अच्छा, एंगल C से हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू? तो हाँ, निकाल सकते हैं। बिल्कुल सामने हमको दिख रहा है y, सो सबसे पहले लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री, दैट इज गिवन। ये गिवन था हमको, तो हमने एंगल y की वैल्यू क्या निकाली? एंगल y इज इक्वल टू एंगल C, इट मीन्स एंगल y की वैल्यू क्या आ गई? 80 डिग्री। फ्रॉम विच प्रॉपर्टी वी यूज हियर? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये तो निकाली हमने सबसे पहली वैल्यू, एंगल y की वैल्यू क्या निकाली? 80 डिग्री। अच्छा, y से या 80 से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम किसी से भी y से या 80 डिग्री से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो x है वो BC पर भी बैठा है और AB पर भी बैठा है। तो ये कौन सा वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम? यहाँ पर एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि किसी भी लाइन सेगमेंट के दोनों एंगल, दोनों कॉर्नर वाले एंगल्स को ऐड करते हैं तो सम क्या आएगा? 180 डिग्री। तो ये लिखा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू क्या है? y, B की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y हमने पहले ले चुके हैं, कितना डिग्री निकाला था? 80 डिग्री। सो 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 उस तरफ जाएगा, सो 180 माइनस 80, सो x की वैल्यू क्या आ गई? 100 डिग्री। ओके, नाउ द ओनली वन थिंग रिमेनिंग, दैट इज z। अच्छा, अब z की वैल्यू क्या निकलेगी? तो सबसे पहले z देखो, z बैठा कहाँ पर है? z बैठा है a और d के एक्सटीरियर में, a और d के एक्सटीरियर में। तो a d की जो पैरेलल लाइन है, a और d की जो पैरेलल लाइन है वो कौन सी लाइन है? वो हमारी है BC। तो अगर हम BC को उठाकर AD के ऊपर रखते हैं, BC को उठाकर ऐसा का ऐसा AD के ऊपर रखते हैं, तो Z के ऊपर जाके कौन बैठेगा? Z के ऊपर जाके बैठेगा 80। सो एंगल Z इज इक्वल टू 80 डिग्री, बट विच प्रॉपर्टी? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके पहले वाले में भी हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करा। तो क्या हमने तीनों वैल्यू निकाल ली x, y, z की? हाँ, x की वैल्यू क्या आई है? 100 डिग्री, y की वैल्यू क्या आई है? 80 डिग्री, और z की वैल्यू भी क्या आई है? 80 डिग्री। सो दिस इज द मेन आंसर। Fifth of question number 2, it is the last question of question number 2. In this we have the parallelogram and also we have a diagonal between the parallelogram. So firstly we have to put the vertex name A, B, C, D. We can put any vertex name, but they must be in the sequence. Okay, now when we see the figure very properly, so from the x, y and z, which value we can take easily? So we can take the angle y value easily because angle B value is given. B की वैल्यू क्या है? 112 डिग्री है. So opposite angles are equal. From that property we can say angle y is equal to 112 degree. So angle y is equal to 112 degree. Same that we are telling from the previously, opposite angles of parallelogram are equal. Okay, from this property we can say angle y value is 112 degree. अच्छा, अगर अब ऐसी बात करते हैं, अब बचा क्या है हमारे पास? x और z. x कहाँ है? x ऊपर है. चलो देखते हैं. अब ऊपर हमको एक फिगर दिख रहा है ट्राइंगल का. दिख रहा है आपको भी? मैंने पेन से नीचे वाले ट्राइंगल को छुपा दिया तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा. क्या नेम दिख रहा है उसका? ADC.
उसमें 40 डिग्री है, y है और x है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि y की वैल्यू हमको पता है 112, तो यहाँ पर क्या हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लग सकती है? हाँ, यहाँ पर हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है, तो हम y की वैल्यू उससे निकाल सकते हैं। तो चलो निकालते हैं। कौन से ट्राइंगल बात कर रहे हैं हम? इन ट्राइंगल ADC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलेगी एंगल x प्लस एंगल y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। एंगल x की वैल्यू पता है? नहीं पता है। y की वैल्यू पता है? हाँ पता है। एंगल y की वैल्यू क्या है? 112 डिग्री और ये 40 एज इट इज़ 180 डिग्री। एंगल x एज इट इज़ 112 और 40 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 152 डिग्री अपोजिट साइड जाएगा, तो कैसे जाएगा? सब्ट्रैक्शन में जाएगा। सो 180 माइनस 152 डिग्री। 180 में से 152 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 28 डिग्री। ओके, सो दिस इज 28 डिग्री। ओके, नाउ y निकल गया, x निकल गया, बस एक चीज़ बची हमारा z। तो z हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं? देखो, a और b दोनों लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पे बैठे हैं, तो 40 प्लस z कर देते हैं। यहाँ पर एंगल के दो पार्टीशन कर दिए, इट मीन्स यहाँ पर पूरा एक एंगल था, तो 40 प्लस z कर देते हैं। 40 प्लस z प्लस 112 इज इक्वल टू में क्या आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल से। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका ये हो गया कि ये ए और सी जो दोनों जो हैं वो एंड पॉइंट्स हैं, इसके जो रिवर्सिबल एंगल्स है, मतलब उस तरफ देखोगे आप, तो ए सी के उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास x है और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? z है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एंगल x और एंगल z एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल है। बट कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी लग रही है, लाइन्स एंड एंगल्स वाली। ओके, सो x की वैल्यू क्या है? 28 डिग्री और z की वैल्यू, इट मीन्स एंगल z की वैल्यू क्या आ गई? 28 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है? 28 डिग्री, y की वैल्यू क्या है? 112 डिग्री एंड z की वैल्यू भी क्या निकली? 28 डिग्री। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट फिफ्थ वन। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B is equal to 180 degree? In this question we don't have the figure, they only tell that the quadrilateral vertex name is ABCD। अब उसमें उन्होंने बताया है कि आपको इस तरीके से चीज़ें होगी, तो वो क्या होगा वैसा quadrilateral, तो हमको यस और नो और उसके रीज़न देने हैं कि क्यों यस है क्यों नो है, उस टाइप से रीजंस देने हैं। तो सबसे पहले quadrilateral के वर्टेक्स नेम रख लेते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू गो इन द एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मैनर। सो ABCD, A B C D, this is the quadrilateral vertex. First thing is angle D plus angle B is equal to 180 degree. It means they are telling that if we are adding angle B and angle D to each other, their sum must be 180 degree. हाँ, तो ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है कि यहाँ पर हम एंगल D की बात कर लेते हैं और यहाँ पर हम एंगल B की बात कर लेते हैं, तो 180 डिग्री आ सकता है। अब बहुत सारे तरीके से आ सकता है, देखते हैं किस तरीके से आ सकता है। जैसे कि अगर हमने 60 प्लस 120 डिग्री कर दिया तो 180 आएगा। हाँ आएगा। हमने इसको 30 प्लस 150 डिग्री कर दिया तो 180 आएगा, मिल जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे तरीके कि हमने इसको 100 प्लस 80 कर दिया तब भी हमको 180 मिल जाएगा। बहुत सारे तरीके से हमको एंगल डी और एंगल बी क्या हो सकता है? 180 डिग्री मिल सकता है। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट? द मेन प्रॉब्लम इज देयर दे टेल अस दैट इज पैरेललोग्राम। कैन अ quadrilateral ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ? अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पैरेललोग्राम में एंगल D और एंगल B क्या होने चाहिए? इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल। तो क्या इनमें से किसी भी केस में हमको 60 और 120 एक दूसरे के इक्वल है, 30 150 एक दूसरे के इक्वल है, 180 एक दूसरे के इक्वल है? हमको ऐसा भी कोई सा भी केस नहीं मिला। हमको सिर्फ एक ऐसा ही केस मिलेगा कि हम 90 और 90, इट मीन्स ईच एंगल मस्ट बी राइट एंगल। इन ओनली दैट केस वी कैन से यस 180 डिग्री इज देयर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा पता है आपको? इसका आंसर आएगा इट मे
और इट मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम हैविंग एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेललोग्राम की बात करी थी, इट मीन्स हमको एंगल बी और एंगल डी दोनों एक दूसरे के इक्वल ही चाहिए। 180 तो हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन 180 बनाने के लिए हमको दोनों को क्या चाहिए, एक दूसरे के इक्वल। तो इसका आंसर आएगा इट मे और मे नॉट बी फॉर एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फॉर द पैरेललोग्राम एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी ऐसा होना चाहिए था। सो इट मे और मे नॉट बी एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा तो सिर्फ किस केस में होगा, 90 डिग्री वाले केस में होगा, बाकी तो होगा ही नहीं। नाउ द सेकेंड इज ए बी इज इक्वल टू डी सी। ए बी इज इक्वल टू डी सी, इट मीन्स जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है और उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। नाउ ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए डी क्या है, 4 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है, 4.4 सेंटीमीटर है। अब आप देखोगे तो गड़बड़ हो गई, ए बी और डी सी तो इक्वल है, बट क्या ए डी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है, नहीं, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। 0.4 का क्या आ रहा है, डिफरेंस। सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नो। रीज़न क्या है, बिकॉज ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, देयर मेजरमेंट इज डिफरेंट। नाउ द थर्ड वन, एंगल ए इज 70 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, 70 डिग्री बोल रहा है। एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री, यहाँ पे कितना बोल रहा है, 65 डिग्री बोल रहा है। तो वो बोल रहा है क्या ऐसा पैरेललोग्राम पॉसिबल है। अब आप देखोगे बिल्कुल ध्यान से तो एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के सामने सामने हैं और हमको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या इक्वल दिख रहे हैं, नो। सो इट्स आंसर इज ऑल्सो नो, बिकॉज हमको रीज़न भी देना पड़ेगा, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। So this is the solution of third one. Question number 4 of exercise 3.3 is draw a rough figure of a quadrilateral. ऐसा रफ फिगर बनाना है quadrilateral का, that is not a parallelogram. वो पैरेललोग्राम नहीं है, बट फिर भी क्या है, quadrilateral, but has exactly two opposite angles of equal measure. हमको एक रफ फिगर बना के देना है quadrilateral का, बट वो पैरेललोग्राम नहीं है, बट उसके जो दो अपोजिट एंगल्स हैं वो एक दूसरे के मेज़र के इक्वल हैं। तो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम का टाइप था जिसके एडजेसेंट साइड्स क्या थी, इक्वल थी। आपको शायद याद आएगा, तो उसका आंसर है काइट। काइट का अगर हम रफ स्केच बनाते हैं, रफ स्केच बोला है तो बिना विदाउट मेजरमेंट बनाएंगे बेटा, है ना। ये हमने इसका विदाउट मेजरमेंट बनाया, इसके पॉइंट्स के नेम रख लेते हैं ए बी सी डी। तो ए बी और डी सी तो एक दूसरे के इक्वल दिख रहे हैं, वैसे ही बी सी और सी डी एक दूसरे के इक्वल है। तो एंगल का पेयर कौन सा इक्वल दिख रहा है, एंगल का सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर इक्वल दिख रहा है कि एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। सो ओनली दिस मच सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इट्स आंसर इज काइट, और हमने काइट का एक रफ स्केच भी बनाकर इसको शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 इज the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. It means in the question they given us a ratio of adjacent angle. So ratio of adjacent angle is 3:2. अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। Find the measure of each of the angles in the parallelogram. उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली है कि एडजेसेंट एंगल्स का जो रेशियो है 3:2 है। अब निकाल के बताओ कि ये 3 और 2 का रेशियो जो है ये टोटल है कितना। तो हमने एक रफ फिगर बना लिया, क्योंकि फिगर तो दिया नहीं था, तो हमने एक रफ फिगर बना लिया। अभी हम इसके फिगर के नेम रख लेते हैं। तो ए बी सी डी, ये हमने फिगर के वर्टेक्स के नेम रख लिए। तो आप देखोगे कि एडजेसेंट एंगल्स हैं, इट मीन्स एक ही साइड के कॉर्नर पर जो बैठे हुए एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पर ए और बी की बात कर लेते हैं। इट मीन्स अगर ए 3 है तो उस केस में बी कितना होगा, 2 होगा। तो चलो करते हैं। लेट द एंगल मेजर बी एक्स, हमने मान लिया कि एक्स है।
अब x है तो उस केस में एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, एंड 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x। तो एंगल A की वैल्यू निकली 3x, एंगल B की वैल्यू क्या निकली 2x निकली। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी कौन सी, एडजेसेंट एंगल्स मेक्स सप्लीमेंट्री पेयर। It means when we add angle A plus angle B, its sum will give us 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी है 3x है, एंगल B की वैल्यू कितनी है 2x है, 180 डिग्री। दोनों का ऐड करा तो कितना आएगा 5x, 180 डिग्री। अब 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 36 डिग्री। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू क्या आएगा, अब हमको एंगल A और एंगल B की बिल्कुल सही वैल्यू निकाल के देनी है। x की वैल्यू तो 36 निकालनी, बट हमको x निकाल के देना है, नहीं हमको एंगल A और एंगल B की वैल्यू निकाल के देनी है। एंगल A है 3x, सो 3 इंटू 36 होगा, ठीक है 3 इंटू 36 होगा, तो वो हमको क्या देगा, वो हमको देगा मल्टीप्लाई करने पर 108 डिग्री। ऐसे ही एंगल B की बात कर लेते हैं। एंगल B के लिए एंगल B की वैल्यू क्या है 2x, सो ये लिखा 2x, 2 इंटू 36 क्या देगा हमको निकाल के, 2 इंटू 36 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 72 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। A वैल्यू इज 108 डिग्री एंड B वैल्यू इज 72 डिग्री। Question number 6 of exercise 3.3 is two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. It means when we are talking in the parallelogram two adjacent angles are equal. अगर एक की वैल्यू x है तो दूसरे की भी क्या होगी x, एक की 1 है तो दूसरे की भी क्या होगी 1। इस टाइप से दोनों की वैल्यू क्या है सेम। Find the measure of each of the following angles, each of the angles of the parallelogram. उन्होंने बोला कि आप दोनों की वैल्यू निकाल कर दो कि दोनों क्या होंगे। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन करा था, सबसे पहले हम वैसे करेंगे, लेट एंगल मेजर बी एक्स, हमको नहीं पता तो हम सबसे पहले उसकी वैल्यू क्या मान लेंगे, कोई एक वेरिएबल मान लेंगे। तो हमने मान लिया उसकी वैल्यू क्या है एक्स है। अब एडजेसेंट है तो जरा फिगर में देख लेते हैं तो क्या आसानी पड़ेगी, तो फिगर के वर्टेक्स नेम रख लिए ए बी सी डी। अब कोई सी भी एक साइड पकड़ लेते हैं, तो हमने यहाँ पकड़ ली डी सी एडजेसेंट एंगल्स बोले तो हम पास के डी सी के ही कॉर्नर वाले एंगल्स को देखेंगे। तो ये रहा हमारा डी सी, ठीक है। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी क्या होगा x। तो करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी दैट वी अप्लाइड इन द क्वेश्चन नंबर 6th, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम मेक्स सप्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल D प्लस एंगल C, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री पेयर आना चाहिए। सप्लीमेंट्री पेयर का मेजर कितना होता है 180 डिग्री। एंगल D की वैल्यू कितनी है x, C की भी कितनी है x, 180 डिग्री। x कितने x हो गए 2x हो गए। अब ये जो 2 है ये नीचे जाएगा 180 के, तो 180 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। इट मीन्स ईच एंगल इज राइट एंगल। इट मीन्स दोनों के दोनों ही क्या होंगे 90 डिग्री के पेयर्स होंगे। सो हेयर वी कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 6th. In the next video we will go through the question number 7 to last question. I hope you understood it. Thank you and have a nice day.